Namaskar, Adab, Jai Shri Krishna, and a warm evening to one and all present here on behalf of IIJM. My name is Akanksha Jain. And my name is Karan Vaya, and we are going to be your hosts for this wonderful evening. यार आकांक्षा, एक बात बता, क्या तेरी जिंदगी में कोई समस्या है? अरे ये क्या पूछ लिया तूने? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि तू मेरा को-होस्ट है। जैसी छोटी मोटी समस्याएं तो आती जाती रहेगी मेरी दोस्त, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। वाह वाह मेरे शायर, अब हो गया तेरा, आगे बढ़े? क्यों नहीं। अब हम हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को दीप प्रज्वलित करने के लिए स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर आर.एन. प्रसाद सर, श्री दिनेश निजवान सर, श्री शांतिभाई पटेल, मिस्टर हसमुख भाई सोनी, मिस्टर चंद्रेश भाई सोनी, मिस दर्शना मांडलिया, Dr. Chandan Chatterjee sir, Mr. Rohit Choksey sir, and Mr. Jagyar Bhai Soni are not present at the evening due to some reason. Thank you so much, everyone. I would like to request all the chief guests to please settle down on the dais. Now, I would like to request Ms. Parita Soni to honor Shri R.N. Prasad sir, who is the director of CED. Ms. Virva Shah to honor Shri Dinesh Nizwan, Department of Employment of Training, New Delhi. I would like to call Mr. Dhruvil Soni to honor Mr. Shanti Bhai Patel, President of GJTCI Gems and Jewelry Trade Council of India, President of Indian Bullion Jewelers Association, Gujarat. Mr. Dhruvil Soni will also honor Mr. Hasmukh Bhai Soni with a bouquet. It's a great pleasure for us to have you all as our chief guests for this wonderful evening. I would like to request you all to please sit on the first lane to enjoy the further moments. शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी का नाम लेकर करते हैं, उसी तरह इस कार्य की शुरुआत भी गणेश जी का नाम लेकर करेंगे। वो गणेश जी जिनका रूप बड़ा निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है, जिस किस कर भी आती है मुसीबत, उन्हें इन्होंने ही तो संभाला है। निधि एंड ग्रुप फॉर गणेश तूती। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
myself, Vatsal Patel, on behalf of Jewel Cast and Techno Private Limited, I heartily welcome all our delegates, guests, and dear students. Today, we all are present here to celebrate the second convocation ceremony of IIJM. Before moving further, we would like to introduce our company and the man behind it, Mr. Chandresh Soni. As being a jeweler and belonging from a goldsmith background, he has dedicated his 20 years in the sparkling gems and jewelry industry. With the vision of becoming world's largest institute and the sole university of gems and jewelry, the company started with basic infrastructure and facilities as JCT CAT Training Center before 9 years at Kalupur. All the while, we continued providing technology-based education to this sector, and with positive returns, we succeeded in opening our another center at Parimal Garden in January 2010. Moving further in direction to achieve our vision, we added one more milestone to our journey as Indian Institute of Jewelry Manufacturing in July 2014 with state-of-the-art infrastructure and facilities at Vasrapur. Advancing further in education sector, we also started jewelry manual manufacturing, designing as well as diamond grading courses. And as being a company of modern jewelry solutions, we provide project developing, designing services, rendering services, as well as project consultancy. And this doesn't end here. To meet the lapse of advancement in 3D technology, our another company, Shriji CAT Techno Private Limited, came into existence in 2015. Now, I would like to request the President of Jewel Cast and Techno Private Limited, Mr. Chandresh Soni, and would request him to share few words. Very good evening, all invited special guest, Sri Prasad sir, Nizwan sir, Santi Kaka, especially Santi Kaka is called Santi Bhai Patel, but we are just saying him Santi Kaka with great love and respect. My dear students, guests and all my colleagues and especially my team of IIJM, thank you very much for joining this evening which we have just planned. IIJM વિશે કદાચ આઈ પ્રિફર્ડ કે આપણે ગુજરાતીથી કરીશું વાત, રાઈટ? IIJM વિશે વધારે ધારો કે આપણે સમજવાની કદાચ કોઈ કોશિશ કરીએ તો ઇમિડિયેટ વાત કરીએ તો this is an second convocation program. First convocation program was made with I think 14-15 students, and right now we are around 65 or 70 students. As Vatsal told you that we have the vision of becoming a largest institute of world. કદાચ અત્યારના લેવલે કોઈને સાંભળવાથી વધારે પડતું એક્ઝિસ્ટિંગ લેવલ ના લાગતું હોય, બટ વી હેવ અ વિઝન ઓફ લાર્જેસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ધ વર્લ્ડ ટિલ 2025 સુધીનો અમારો એક ટાર્ગેટ છે. જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રી જે અનઓર્ગનાઇઝ સિસ્ટમથી અત્યારે રન થઈ રહી છે, એમાં સ્કિલ લેવલને જે રીતે ઇમ્પેક્ટ નથી મળી રહ્યા, એનો એક ઇઝીલી સારો રિસ્પોન્સ લઈ શકાય સ્ટુડન્ટ્સ એઝ વેલ ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકોને, એના માટેનો એક નાનો પ્રયોગ જેને કહી શકાય એવો અમે 2 દિવસ 2nd and 3rd માર્ચ કર્યો, અને જેમાં કદાચ એક્ઝિસ્ટિંગ અત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ જે હાજર છે એમને પણ ખ્યાલ આવ્યો હશે કે ઓવરઓલ ઇન્ડસ્ટ્રીનો પરફોર્મન્સ રિસ્પોન્સ ઘણો સારો હતો. અરાઉન્ડ 60 સ્ટુડન્ટ્સે એમાં પાર્ટિસિપેશન કર્યું હતું, અને જે રીતે એમના લાઈવ રિવ્યૂ, ઇન્ટરવ્યૂઝ અને એનું આયોજન કર્યું હતું, તો ઓલમોસ્ટ આઈ એમ હેપી ટુ સે but around 80% students are recruit or they get the job or they're part of freelancing and all these things. Onwards, we need a support from obviously from the industry, obviously from the students, કારણ કે આપણી આ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એની અંદર જ્વેલરીના સ્પેસિફિક કોર્સીસમાં કદાચ તમે લોકોએ જ્યારે જોઈન કર્યું હોય ત્યારે અથવા તો અત્યારના લેવલે કયા લેવલનું ડિમાન્ડ લેવલ છે, આઉટકમ શું હોઈ શકે, અથવા તો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા સ્પેશિયલાઇઝ ઇન જ્વેલરી ડિઝાઇનિંગ ઓર CAD
કેટલા લેવલના આઉટપુટ્સ લઈ શકાતા હોય છે એના અમારી પાસે સ્પેસિફિક એક્સક્લુઝિવ જેને કહી શકાય કે ફીડબેક્સ આવેલા છે કે જે લોકો સ્ટાર્ટિંગ સેલરી જેને કહીએ તો દે આર ગેટિંગ સ્ટાર્ટિંગ સેલરી ઓફ અરાઉન્ડ 50,000 કે જે અત્યારના લેવલે આપણે MBA થયેલા સ્ટુડન્ટ્સ પણ નથી મેળવી શકતા હોતા અને એ લેવલ અમે અચીવ કર્યું છે બિકોઝ ઓફ વી આર જસ્ટ ગિવિંગ ધ ટ્રેનિંગ એઝ એન પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટ્સ. પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટ્સમાં એવી રીતની હોય છે કે નોર્મલ જે કોર્સ થતો હોય તમારા ડ્યુરેશનમાં એના કરતાં વધારે ઇન્ડસ્ટ્રીની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણેનું તમને ટ્રેનિંગ અને સપોર્ટિંગ આપવામાં આવતું હોય છે. સેકન્ડ થિંગ, જે રીતે આપણે આગળ વધવા માગીએ છીએ એઝ એન પાર્ટ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓર સ્ટુડન્ટ, તો અમે સ્ટુડન્ટ્સને એક વસ્તુ બેઝિક શીખવાડતા હોય છે જે કદાચ તમે લોકો સાક્ષી છો કે યુ આર જસ્ટ નોટ એ સ્ટુડન્ટ ઓર યુ આર નોટ જસ્ટ અ ડિઝાઇનર, યુ આર આર્ટિસ્ટ. અને એઝ એન આર્ટિસ્ટ અમે એવો આગ્રહ પણ રાખતા હોય છે કે તમે તમારા વિઝિટિંગ કાર્ડ્સ લઈને શોરૂમ કે મેન્યુફેક્ચરર્સ પાસે ન જાઓ, તમારો રિસ્પેક્ટને મેન્ટેન કરીને ઇન્ડસ્ટ્રી તમારી પાસે સારા લેવલના આઉટપુટ આપી શકે ને એના માટેનું આપણે લાઈવ એક્ઝામ્પલ 2 દિવસ પહેલાં જોયો કે જેમાં તમને પોતાને ખ્યાલ આવે કે તમારું ઇમ્પોર્ટન્સ લોકોને કેટલું છે ડિઝાઇનર્સ લેવલનું. ઓનવર્ડ્સ આગળ એના ફર્સ્ટ આ ટ્રાયલ હતો આપણો અને ટ્રાયલ અમારી દ્રષ્ટિએ ધાર્યા કરતાં ઘણો સક્સેસફુલ રહ્યો. કોન્વોકેશનની જો વાત કરીએ તો ઇન્વાઇટીઝમાં જેવી રીતના તમને કીધું કે સડન રીઝન્સના હિસાબે આપણે કદાચ સમજો કે અમુક લોકોને સ્કીપ કરી રહ્યા છે, બટ ઇટ્સ ઓકે, વી આર હિયર, વી આર એન્જોઈંગ, વી હેવ સ્પેશિયલ ગેસ્ટ ઓવર હિયર. સો એમની ગાઈડલાઇન્સ અને એમના સારા નેજા હેઠળ આપણે આગળ ઘણી બધી સારી વસ્તુઓ અને વિગતો જાણવા મળશે. મૂવિંગ ફોરવર્ડ આઈ વિલ હેન્ડ ઓવર માય સ્પીચ ટુ ધ હોસ્ટ. દે આર હોસ્ટિંગ Karan and Akanksha, please. Moving further, we would like to initiate the major event of this evening, our second convocation ceremony. We would like to call upon stage Sri Aryan Prasad to please join us and share few words with appreciating our stars of India design. A huge round of applause for it. Respected guests and friends, आप लोगों को देख करके मुझे आज से 25 साल पहले जब मैं IIT खड़गपुर का हिस्सा था वो दिन मुझे याद आ गया. अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि स्किल्स की बहुत कमी है. मैं भारत के एक बहुत प्रतिष्ठित IIT संस्थान का प्रोडक्ट हूँ. मुझे भी काफ़ी इस चीज़ की फीलिंग है कि आज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एजुकेटेड क्लास तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस एजुकेटेड क्लास को स्किल्स की बहुत कमी है. आप कभी मत सोचना कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जो बच्चों का एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, 4 साल की यात्रा ख़त्म होती है, लेकिन उसके बाद वो अच्छे इंजीनियर बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन इस तरह का है कि हम लोग डिग्री को बहुत महत्व देते हैं. हमारा पूरा डिग्री बेस्ड एजुकेशन है. इंट्रांस टेस्ट होते हैं. इंट्रांस टेस्ट में किस चीज़ की टेस्ट होती है? आपके नॉलेज की टेस्ट होती है. नॉलेज मीन्स आपके पास कितना इंफॉर्मेशन है. आप जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस वक्त आपको फिजिक्स की कितनी जानकारी है, मैथमेटिक्स की कितनी जानकारी है, आप कितना अच्छा से पेपर लिख पाते हैं, उसके आधार पर आपका चयन हो जाता है, आप अच्छे इंस्टीट्यूट के पार्ट बन जाते हैं. लेकिन आपके एप्टीट्यूड को, आपके अंदर जो इनहेरेंट जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आप कह सकते हैं इनबिल्ट स्किल्स, इसकी पहचान हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पाती है. इसी के कारण आज परिस्थिति ऐसी है कि हम एजुकेटेड क्लास तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी फौज जो कि अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड क्लास क्रिएट कर रहे हैं. और बड़ी शर्मनाक बात है, शर्म होती है कि अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी पढ़ के लोग अनएम्प्लॉयड हैं. बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने की. आज मैं इस जगह बैठा हूँ जहाँ मुझे इस बात को ध्यान रखना है कि आदमी कम पढ़ा लिखा है, हो सकता है मैट्रिक भी हो, 10th भी पास न किया हो, उसके पास कोई डिग्री न हो, या हो सकता है वो इंजीनियर हो, उसके पास PhD का क्वालिफिकेशन हो. हमारा जो CET है, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हम कोई भेद करते नहीं हैं. हम तो एक ही मंशा रखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के लिए जिसके पास जिस तरह का
राइट एप्टीट्यूड है उसको पहचान लिया जाए और उसको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये सच पूछे तो मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया था, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी आपके इंस्टीट्यूशन की, लेकिन जब चंद्रेश भाई से मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। मैं बेसिकली जिस सेक्टर को बिलोंग करता हूँ वो इंजीनियरिंग में मरीन इंजीनियरिंग है, बिल्कुल दूर है। आप कहाँ जेम्स ज्वेलरी बनाते हैं, मैं कहाँ दरिया का आदमी, दूर दूर तक दोनों में कोई पहचान नहीं है। लेकिन जहाँ आज मैं बैठा हूँ वहाँ सरकार का मैंडेट है, गुजरात सरकार का, कि साल में आप 2 लाख यूथ एम्प्लॉयड स्किल्ड यूथ क्रिएट कीजिए कि उनको नौकरी मिले, उनको कहीं ना कहीं उसको जब स्किल का जब ट्रेनिंग हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एब्जॉर्प्शन हो। अब चूंकि यहाँ आप लोग जो बैठे हुए हैं इसमें काफ़ी कुछ मैं समझता हूँ। मुझको कहा गया था कि ज्वेलरी सेक्टर के भी लोग होंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग्स थोड़ा देना चाहता हूँ 3-4 चीज़ों का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक उसको ना समझा जाए तब तक आपको हमारे जितने भी सारे स्कीम्स हैं अगर जानकारी ना हो तो आप कुछ करने भी नहीं पाएंगे। देखिए, आपने सुना होगा ये जो है इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट जो सूरत में है। सूरत में हमारा सरकार का हमारे जो CED है उसका स्कीम है, उसका नाम है एंकर इंस्टीट्यूट। एंकर इंस्टीट्यूट का क्या काम रहता है, जैसे कि आपका सेक्टर है जेम्स ज्वेलरी, तो जेम्स ज्वेलरी सेक्टर में एक एंकर इंस्टीट्यूट IDI है सूरत। सरकार इसके लिए 10 करोड़ रुपए देती है। अब ये 10 करोड़ रुपए खर्च क्यों करती है? 5 साल में 10 करोड़ का बजट है। करना क्या है? तो करना यही है कि आज के डेट में ITI के लेवल पे, डिप्लोमा के लेवल पे, BE के लेवल पे, PG के लेवल पे जो पढ़ाई हो रही है और जो पढ़ाई होके जो बच्चे निकल रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है, इसका रीजन है कि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रहा है। तो इंडस्ट्री की जो नीड है और जो पढ़ाया जा रहा है उसके बीच में कुछ गैप है, उस गैप को स्टडी किया जाए। और उस स्टडी करने के बाद एंकर इंस्टीट्यूट का काम है कि 5 साल का टाइम लीजिए, सिलेबस को रिवाइज कराइए, गवर्नमेंट को अप्रोच कीजिए, हर एक लेवल पर सिलेबस का रिवीजन हो जाए ताकि जो बच्चे निकलें वो स्किल्ड बच्चे हों, उनको उसी चीज़ की जानकारी हो जिसका कि इंडस्ट्री में नीड है। इसके लिए काम हमने दी है IDI को। मैं आने के बाद उसका रिव्यू कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर उन्होंने जो कुछ भी काम किया है उसकी पूरी गतिविधि हमें मालूम हो जाएगी। फिर हम आगे का रास्ता निकालेंगे कि उन्होंने एग्जैक्ट क्या किया और कहाँ कमी रह गई। तो शुरुआत वहीं से है कि आपको वही चीज़ पढ़ाया जाए। आज के दिन में इंफॉर्मेशन की कोई कीमत नहीं है, इंटरनेट का ज़माना है, आप इंफॉर्मेशन भरे हुए हैं। मैं जितना नहीं जानता हूँ उससे ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट इंफॉर्मेशन जो कि नीड है, आज की इंडस्ट्री की नीड है, उसको बताना, वही पढ़ाना, वो बहुत ज़रूरी है। तभी आपका मार्केट में कुछ पूछ होगा, इंडस्ट्री आपको पकड़ के ले जाएगी। अदरवाइज सिर्फ इंफॉर्मेशन की कोई कीमत नहीं है। तो एक तो हमारा बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है कि हम जहाँ प्रॉब्लम है पहले उसको अटैक करें। प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर एक लेवल पे स्टार्टिंग फ्रॉम ITI अप टू PG लेवल कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, एक हमारा स्कीम ये है। दूसरी स्कीम है ब्रिज कोर्स, ये शॉर्ट टर्म स्कीम है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इंडस्ट्री वाले को आप सामने में आइए। जैसे जेम्स ज्वेलरी सेक्टर है, इसमें भी जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्री हैं, हम कहते हैं आप सामने में आइए। आपको मैन पावर नहीं मिल रहा है तो क्या जो भी गड़बड़ी है, जो भी गैप है, आपको एक कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। अब क्या है, आज के समय में NCVT, सेक्टर स्किल काउंसिल, ढेर सारी बॉडीज है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि आप अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। बताइए मेरे को, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी इक्विपमेंट चाहिए। आप खुद नहीं पढ़ा पाएंगे, किसी होस्ट इंस्टीट्यूट जैसे आपका जो है इंस्टीट्यूट, इसको इस तरह के इंस्टीट्यूट के साथ आप MOU कर लीजिए। इक्विपमेंट खरीदने के लिए 1 करोड़ तक का हमारे पास प्रोविजन रहता है, वो पैसा हम देते हैं। ये है ब्रिज कोर्स का। देखिए, हमारे सारे स्कीम में एक कंडीशन बहुत है कि हम पैसे तभी देते हैं जब रोजगार आप दे सकें। सिंपली अगर आप भी वही काम करेंगे कि डिग्री दे करके और आपने सोचा कि अब तीसरी हो गई तो हम पैसा नहीं देंगे। बहुत क्लियर है। तो इस मामले में सब लोग क्लियर रहें। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं किया तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट नहीं देने वाली है, इसीलिए प्लेसमेंट उसका लिंक। तीसरी समस्या क्या आ रही है कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी लेट से होता है। जैसे कि NCVT का जो सिलेबस है या इधर सेक्टर स्किल काउंसिल, टेस्टिंग सेंटर की पहचान में तकलीफ होती है। एग्जामिनेशन होते होते कहीं कहीं मैंने सुना है कि साल लग जाते हैं।
साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, आपके 4 महीने का कोर्स, लेकिन आपको फाइनल सर्टिफिकेट होते होते 1 साल निकल जाए तो निराशा होती है। हमने एक नया भी स्टार्ट किया है कि आप मत सोचिए कि RDAT के थ्रू ही जाना है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग भी ढेर सारे थर्ड पार्टी एसेसर्स रखे हुए हैं और ये अवेयरनेस होनी चाहिए। आप इस चीज़ को समझिए कि थर्ड पार्टी एसेसर के द्वारा भी अगर आपका इवैल्यूएशन हुआ, सर्टिफिकेट मिला, उसकी भी उतनी ही मान्यता है जितना कि NCVT के जो एसेसर्स होते हैं RDAT के थ्रू वो आपको करके देंगे। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। हमेशा हम सोचते हैं कि सरकार का जो है डायरेक्ट सर्टिफिकेट वैसा मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमें अच्छा लगेगा, अच्छी बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो सिस्टम फेल है। तो थर्ड पार्टी एसेसर का प्रोविज़न है, तो मैं सब ट्रेनिंग पार्टनर्स को बोलता हूँ कि आप जाइए, उसके लिए हम आपको देते हैं। हमारे से जो आपको ग्रांट मिलेगा, अगर आपने थर्ड पार्टी असेसमेंट करा दी, हम ग्रांट आपको रिलीज कर देंगे। ये हम प्रमोट करना चाहते हैं कि सर्टिफिकेशन में लेट ना हो। ये हमारी तीसरी है। चौथी स्कीम मैं ये बताऊंगा कि आपके सेक्टर में अप स्किलिंग, जैसे कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कैड आ रहा है, कैम आ रहा है, ढेर सारे आ रहे हैं, तो उसकी भी अप स्किलिंग की ज़रूरत है। तो अगर जो एग्जिस्टिंग आपके इंडस्ट्री में अगर ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उनका स्किल अपग्रेडेशन करें, तो उस स्किल अपग्रेडेशन के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स आप डिजाइन कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय को हम ट्रेन करेंगे, उसके लिए 12,000 का प्रोविजन है। तो ये हम अप स्किलिंग को भी प्रमोट करना चाहते हैं। लास्ट स्कीम जो कि आपके चंद्रेश भाई आप जुड़े हुए हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ट्यूशन फी रिम्बर्समेंट। इस ट्यूशन फी रिम्बर्समेंट में जो भी कैंडिडेट कहीं पर भी आप किसी को ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग में कंडीशन यही रहता है कि एक बैच में कम से कम 75% लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, पर कैंडिडेट मैक्सिमम 15,000 फी रिम्बर्समेंट का प्रोविज़न गवर्नमेंट ने किया है। मैं समझता हूँ स्कीम्स सारी अच्छी है, स्कीम्स में कहीं कोई बुराई नहीं है। अगर ट्रू ट्रेनिंग पार्टनर्स अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छी मंशा के साथ जुड़े, ना तो मैं समझता हूँ कभी असेसमेंट में तकलीफ होने वाली है और ना आप लोगों के प्लेसमेंट में कभी तकलीफ होगी। क्योंकि अगर मंशा अच्छी है तो हर स्टेज पे जो एक ऑथेंटिसिटी होती है, ट्रूथफुलनेस होता है, वो रहेगा। आपको राइट काइंड की फैकल्टी मिलेगी, राइट काइंड की ऑफ ट्रेनिंग मिलेंगी, और ये भी अपना प्लेसमेंट नेटवर्क इतना स्ट्रांग रखेंगे क्योंकि इनका उससे लिंक है। तो मैं समझता हूँ, मैं आज के दिन में यही अपेक्षा करता हूँ कि आपके सेक्टर में एक और बहुत बड़ा है स्कीम कि हम जेम्स ज्वेलरी का ट्रेनिंग सेंटर, जिसके लिए कोई बजट की सीमा नहीं है, ये 5 करोड़ का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है, 15 करोड़ का भी हो सकता है। सरकार ने इसकी कोई सीमा नहीं रखी है। बाकी जितनी स्कीम है सब में सीमाएँ हैं, लेकिन ये ऐसा स्कीम है जिसमें सीमा नहीं है। आपने संदीप आपने अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए मैंने देखा है कि आपके कुछ पेपर्स वगैरह की कमी है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ आए, उस पेपर की पूर्ति करें, और आपके जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं हमसे पीरियडिकली इंटरेक्शंस करें, मिलें, ताकि हम आपको बता भी सकें, आप भी हमें समझ सकें। गवर्नमेंट अभी, गुजरात गवर्नमेंट अभी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्कीम के लिए खासकर GAIF गवर्नमेंट एकेडमिया इंडस्ट्रीज फोरम 3 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है। हम लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट, एकेडमिया और इंडस्ट्री के लोग तीनों को हम लोग बिठा करके आपस में बात करना चाहते हैं कि उनके बीच का जो गैप हो ना रहे। आज की जो परिस्थिति है, इंडस्ट्री वाले एकेडमिया से बात नहीं करते हैं, एकेडमिया वाले इंडस्ट्री से बात नहीं करते हैं। दोनों ने अपना अपना घरौंदा बना रखा है और दोनों मिलते नहीं हैं, अब बहुत ही गैप है। इसकी पूर्ति के लिए हमने अभी हमारे यहाँ गैप फोरम बन रहा है। मैं चाहूँगा अच्छे इंटेंशन के साथ सरकार का जो लक्ष्य है, गुजरात सरकार का 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पर ईयर, बिना किसी एजुकेशन बैरियर के, उसको सफलतापूर्वक करने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको ऑनेस्ट पर्पस, ऑनेस्ट इंटेंशंस और ऑनेस्ट एक्शन के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर हम ये कर सकें तो बहुत बड़ी जो एक हमारी अभी स्किल मैन पावर की जो गैप है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। आप सबके सफल भविष्य की मैं शुभकामना करता हूँ। माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। शुरुआत उन्हीं से करते हैं जो ऑलराउंडर है, जिनके डिजाइन्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसा तो कौन है? तुझे नहीं पता? चलो ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं। तो ऑडियंस, एनी गेसेस?
चलो हार्दिक के लिए कौन है? से हार्दिक। Call his name. दया के लिए कौन है? So let's call upon Daya Anshodaria. I'd like to call upon stage Mr. Hardik Devani. I would like to call Mr. Sachin Patel, who performs amazingly in manual designing. He is also the student of CAD designing. थैंक यू सो मच सर। अरे अरे सचिन भाई, कहाँ भाग रहे हो? जाते जाते अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करते जाओ। थैंक यू चंद्रेश सर एंड IIJM ટીમ। બટ આ સર્ટિફિકેટ જે છે ખાલી મારા માટે સર્ટિફિકેટ નથી, પણ એક લાઈફ માટેની એક મોટી ગિફ્ટ છે। એ એટલા માટે કહું છું કે ડિગ્રીના સર્ટિફિકેટ મળતા હોય છે, બીજા બધા પણ સર્ટિફિકેટ મળતા હોય, પણ આ ક્રિએટિવિટીનું સર્ટિફિકેટ છે। અને ક્રિએટિવિટી એ અંદર રહેલી એવી તમારી અંદર રહેલી એક એવી સ્કિલને ઓપન કરે છે અને એમાં મદદ કરે છે ચંદ્રેશ સર ને એમની ટીમ। અહીંયા આવ્યા પછી ખ્યાલ આવ્યો કે આ ડિઝાઇનિંગ હું પણ કરી શકું છું, એટલા માટે થેન્ક યુ। शायरी याद आ रही है। हे भगवान, बोल। मुसीबतें सब पे आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई हीरे की तरह निखर जाता है। वाह, वैसे हीरे से एक बात याद आई, क्यों ना आगे बढ़ते हुए अब हम हमारे डायमंड ग्रेडिंग के टॉपर्स को बुलाएं। So now I would like to invite Sri Dinesh Nizwan to join us on stage and to appreciate our toppers of diamond grading. रिस्पेक्टेड गेस्ट, और मैं पहले स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दूंगा जिनको आज सर्टिफिकेट मिलेगा, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये मत समझे कि ये जो स्किल ट्रेनिंग है वो लास्ट है, ये उनका पहला स्टेप है। उनको हर लाइफ में और बढ़ने के लिए उनको और स्किल सीखना चाहिए। जितना वो स्किल सीखेंगे उतना उनको जॉब भी अच्छा मिलेगा और कैरियर में प्रोग्रेशन भी होगा। मैं जिस डिपार्टमेंट से आया हूँ उसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हम 2 फ्लैगशिप स्कीम चलाते हैं। एक स्कीम का नाम है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम और एक का नाम है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम चलाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 साल के कोर्सेज चलाते हैं और कुछ कोर्सेज 1 साल के हैं, कुछ कोर्सेज 2 साल के हैं, और इसमें 126 ट्रेड में कोर्सेज चलाए जाते हैं। ये जो हम कोर्स बनाते हैं, जैसे मिस्टर प्रसाद कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे लिंकेज नहीं है इंडस्ट्री और ट्रेनिंग सेंटर्स का, एकेडमिशिया का, लेकिन ऐसा हम होता नहीं है, क्योंकि हम जो भी हम ट्रेड सिलेबस बनाते हैं उसमें हम ट्रेड कमेटी बनाते हैं, जिसमें इंडस्ट्री से आदमी आते हैं, ट्रेनिंग सेंटर से आदमी आते हैं और एकेडमिशियन से भी आते हैं। उनके सब हम एक्सपीरियंस जो भी उनके जो स्किल चाहिए ट्रेड के लिए, हम उसका एक ड्राफ्ट सिलेबस बनाते हैं। उसके बाद ट्रेड कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद हम इंडस्ट्री में सर्कुलेट करते हैं और हम एक अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, फिर लोगों के कमेंट्स लिखते हैं। अगर कमेंट्स नहीं, जो भी कमेंट्स आते हैं जो भी अच्छे होते हैं उसको हम इंक्लूड करके कोर्स को हम तब चलाते हैं।
और हमारे कोर्स में 70% प्रैक्टिकल है और 30% थ्योरी है। और इसके बाद हमने एक नया चीज़, एक नेशनल ओपन स्कूल के साथ हमने एक नया MOU साइन किया है, जिसमें 8वीं पास बच्चा हो जिसने ITI किया हो, उसने 2-3 एग्ज़ाम दे देगा तो उसको 10th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो आगे BA कर सकता है, डिप्लोमा कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। और किसी ने 10वीं पास किया है और ITI किया है, अगर वो 2-3 कोर्स पास कर लेगा NOS के, तो उसको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये अभी हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है। उसके बाद हमारी एक और स्कीम है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये स्कीम इंस्टीट्यूट में चलता है और इंडस्ट्री में चलता है। ये होती है, डिपेंड करता है ट्रेड के ऊपर। ये है 2 साल से लेकर 4 साल तक। अगर 2 साल का होगा तो उसमें 1 साल बेसिक ट्रेनिंग होगा, 1 साल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग होगा। उससे क्या होता है कि बच्चों को इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट मिल जाता है बिफोर एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम 256 ट्रेड में हम ट्रेनिंग देते हैं। और एक हमने अभी नया फीचर इसमें स्टार्ट किया है कि जो भी इंडस्ट्री बच्चे को अप्रेंटिसशिप लेगा तो हम उसको 25% ऑफ द स्टाइपेंड उसका जो होगा वो गवर्नमेंट पे करेगा अप टू मैक्सिमम ऑफ 1500। अभी जो भी स्टाइपेंड दिया जाता है वो 70% ऑफ द मिनिमम वेज फॉर द स्किल्ड वर्कर। अब दिल्ली में 13,000 मिलता है उसको स्टाइपेंड। 13,000 हो गया 70% का, 9100 मिलता है स्टाइपेंड उसको अप्रेंटिस को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड में। एक स्कीम हमारी एक और है जिसे हम कहते हैं मॉडुलर एम्प्लॉयबल स्कीम्स। इसमें हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे ट्रेनिंग देते हैं। अब जैसे क्या हुआ कि अब एक ट्रेड है वेल्डिंग, उसको पूरा सीखने के लिए 1 साल लगता है, तो लोग कहते हैं कि क्यों ना हम थोड़े स्किल सीख के नौकरी कर लें। तो इसमें क्या करते हैं कि हम मॉडुलर टाइप कोर्सेज चलाते हैं। जैसे एक वेल्डिंग है, वेल्डिंग में कई स्किल होता है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग। तो हम क्या करेंगे, एक बच्चे को मॉड्यूल सिखाएंगे जिसमें वो आर्क वेल्डिंग सीख लेगा। वो आर्क वेल्डिंग सीखने के बाद क्या करेगा, वो नौकरी कर लेगा। नौकरी करते करते फर्दर वेल्डिंग सीख लेगा टिक वेल्डिंग की। उसमें क्या होगा, उसको टिक वेल्डिंग सीखने के बाद उसकी स्किल बढ़ेगी तो उसको तनख्वाह भी अच्छी मिल जाएगी। तो उसे क्या है कि आगे मॉडल करते करते वो कई स्किल सीख जाएगा। उससे क्या होगा, उसका कैरियर भी अच्छा बनता रहेगा। तो ये हमारी 3 स्कीम्स हैं जिससे हम DGT में हम चलाते हैं। और मैं अभी मिस्टर चंदेश से बात कर रहा था कि जो उनके कोर्सेज हैं हम इसको अपडेट करना चाहिए। जो अभी कुछ घंटों के कोर्सेज 120 घंटे के हैं, 180 घंटे के हैं, हमें इसे अपडेट करना चाहिए और नई स्किल इसमें ऐड करना चाहिए जिससे बच्चों को और अच्छा नौकरी मिल सके। इसीलिए मैं आप सबका फिर धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया इस कन्वोकेशन के लिए। थैंक यू। So let's call upon the topper first, Miss Niharika Soni. अब वो आ रही है जिसने IIGM की इतिहास में 60 डायमंड्स गिराने का रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। सो लेट्स कॉल अपॉन मिस परिता सोनी। Now the one who is not only the topper of diamond grading but also has performed well in manual as well as CAD designing. So let's call upon Mr. Vishal Pahuja. So now we would like to hear few words from Miss Parita Soni. Good evening everyone. I'm Parita and I'm basically into CAD, but I did DG because I had interest in it, and DG course actually helped me a lot to learn about diamonds. And of course हमारी इंस्टीट्यूट है तो मैं इतनी तारीफ नहीं करूँगी, but I know it's very great place to learn. And DG का एक्सपीरियंस एकदम अच्छा रहा। एंड हाँ, जो ये 60 डायमंड्स का बोल रहे हैं तो मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ कि हम लोग क्लास में थे एंड हम वी वर 6 पीपल इन द बैच, और सर हमको ग्रेडिंग करने के लिए डायमंड्स देते हैं 10-10। तो सर ने मुझे, आई वॉज राइटिंग समथिंग इन द नोट्स, तो मुझे पता नहीं था कि सर ने ऑलरेडी डायमंड्स दे दी। तो सर ने स्कूप में 60 डायमंड्स दिए और बोला कि 10 डायमंड्स लो एंड फिर 10-10 लेके पास करो।
तो आई वॉज नॉट नोइंग कि सर ने ऑलरेडी स्कूप में डायमंड्स रख दिए, तो फिर मैंने तो स्कूप लिया ऐसे, सर डायमंड्स तो दो, एंड ऑल द 60 डायमंड्स वेर ऑन द टेबल। लकीली सब मिल भी गए थे, बट हाँ, दिस वॉज द इंसिडेंस। थैंक यू। Moving ahead, we would like to invite on stage Shri Shanti Bhai Patel to share few words with us and appreciate the toppers. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ચંદ્રેશભાઈને પહેલાં તો છેલ્લા 8 વર્ષથી હું ચંદ્રેશભાઈ સાથે સંકળાયેલો છું. जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के आज के मेहमान प्रसाद सर जो मेरे सीडी से आए हुए हैं, और अभी जो परिचय हुआ निर्मल भाई का जो दिल्ली से आए हैं, तो मैं गुजरात में उनका स्वागत करता हूँ कि गुजरात में हमारी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में रोजगारी करीब 12 लाख लोग ये इंडस्ट्री में रोजगारी ले रहे हैं. सर, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ प्रदूषण नहीं है, जहाँ पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है. डायमंड इंडस्ट्री की भी मैं बात करूँ तो करीब 9 लाख लोग गुजरात में रोजगारी ले रहे हैं. सर, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वुमेन्स भी काम कर रहे हैं. आज की तारीख में मैं बात करूं तो गुजरात में जितने ज्वेलरी शोरूम हैं, इसमें 70% लेडीज़ वुमेन को रोजगारी मिल रही है. और मेरे को ये खुशी है कि आज गुजरात में 10% वुमेन्स लोग खुद का रोजगारी, खुद का बिजनेस कर रहे हैं. एक्सपोर्ट की बात करें, लोकल डोमेस्टिक की बात करें, तो मैंने सर से अभी एक रिक्वेस्ट किया कि हो सके तो आप राजकोट की, सूरत की, हमारी इंडस्ट्री की जो टॉप प्लेयर्स है, करीब 500 लोग को जूनागढ़ में रोजगारी दे रहे हैं. 5000 वर्कर को डायमंड इंडस्ट्री की हमारी जो रामकृष्ण एक्सपोर्ट है, संघवी एक्सपोर्ट है, ऐसे बहुत बड़े प्लेयर्स है रोजगारी दे रहे हैं. अभी एक हमारा गैदरिंग था, तो इसमें विश्वनगर के अपने कॉमर्स मिनिस्टर के मनोज सर आए थे. तो वही बात हुई कि शांति भाई, गुजरात में इतना अच्छा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर का डेवलपमेंट है, और पूरी एक्सपोर्ट की बात करें तो गुजरात 10 से 8 डायमंड पॉलिशिंग पूरा वर्ल्ड का गुजरात करती है. ये अपने को खुशी की बात है. अगर कहीं भी बच्चे लोग को ये मालूम नहीं होएगा, तमने गुजराती में बात करूँ तो 10 माथी 8 डायमंड गुजरात आखू पॉलिशिंग करे छे. साहेब, इटली में भले ज्वेलरी बनती होय, US में भले ज्वेलरी बनती होय, पण ए डायमंड प्रोसेसिंग होय तो ये गुजरात है. એટલે ગુજરાત એના માટે ગૌરવ લઈ શકે છે. સાથે સાથે એક્સપોર્ટની વાત કરીએ તો જેમ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરનું એક્સપોર્ટમાં આપણું મોટું યોગદાન છે. 15% ગ્રોથ આપણે જેમ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરમાં આપીએ છીએ. અને રોજગારીની વાત કરું તો આખી હિન્દુસ્તાનમાં કૃષિ, ટેક્સટાઇલ, પછી જો મોટામાં મોટી કોઈ રોજગારી હોય તો એ જેમ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરમાં છે. સર, તો મને ખુશી એ વાતની છે કે ચંદ્રેશભાઈની ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આટલા સરસ લગભગ 75ની આસપાસ આજે લોકોને સર્ટિફિકેટ ભાઈઓને બહેનોને મળી રહ્યા છે. તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છા. હું પરમ દિવસે પણ એમની ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ગયો હતો, અને જે બાળકોએ, બહેનોએ જે જ્વેલરી ડિઝાઇનના ડિસ્પ્લે કર્યા હતા, હું આજે તમને એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એમાંથી 10-15 જણને જો રોજગારી જોઈતી હોય ને તો કાલે મારા ત્યાં મોકલજો. જ્વેલર્સ લોકોની ડિમાન્ડ છે, જ્યાં જરૂર હશે તો એમાંથી 70%ની રોજગારી હું કાલે તમને અપાવીશ. કે એટલા માટે આ કહી રહ્યો છું કે દરેક રિટેલ જ્વેલર્સને સારા ડિઝાઇનરની જરૂર છે, ગ્રેડિંગ કરનાર છોકરાઓની જરૂર છે. આપણું ગુજરાતમાં આજે એવું છે ને, લોકો એમ કહે કે ભાઈ મને જ્વેલરીમાં રસ નથી. એવું નથી. આ ઇન્ડસ્ટ્રી એવી છે કે 5000થી માંડીને તમે 5 લાખ સુધી કમાઈ શકો છો. એજ્યુકેશનની જરૂર નથી. સારા ડિઝાઇનર બનો, સારી જગ્યાએ કામ કરો, તમે પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરો. એવી સારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ગુજરાત.
Now would like to call the toppers of CAD designing. Now would like to call upon stage Mrs. Nidhi Soni. Would like to call upon Mr. Rakesh Waghela. Now would like to request Mrs. Nidhi Soni to share your experience with us. Good evening everyone. IIJM students who are working right now with them, IIJM faculties, managing staff, Chandrasekhar, everyone. I had joined this course, Jewelry CAD Designing, basically to learn how to make jewelry using computer technology, because right now computer is in every field. So I joined this course. It lasted for 3 months, but those 3 months changed my life completely. I got the confidence and the boost that yes, I can also make something through this as a designer in market, and I got that professionalism that yes, there is something here to be learned. And the support of IIJM staff, managing staff, everyone is very good and is something to be praised. Whatever queries we had, we would just call here and we can come here, and every time our queries were solved. So thank you Chandrasekhar, Pari ma'am, managing staff for giving the support to me as well as the other students. Thank you. तालियां थोड़ी कम पड़ रही है, मुझे लग रहा है आप थोड़े से बोर हो रहे हैं। तो अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स की बारिश में एक हल्की सी रुकावट लाने के लिए मैं मेरे दोस्त राज को बुलाना चाहूँगा। So ladies and gentlemen, put your hands together for Raj Soni. हर पल मेरिया यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू। हर पल मेरिया यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू। तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what to do। झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे। Now I would like to invite Mr. Hasmukh Bhai Soni to share few words and honor our students. આઈઆઈજેએમના ભાવભર્યા આમંત્રણને માન આપીને અત્રે પધારેલા સર્વે આમંત્રિત મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમને આવકારતા અમને ખૂબ હર્ષ
આનંદ અને આભારની લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ. હવે મને સ્ટેજનો મહાવરો નથી, માઇકનો મહાવરો નથી કે સ્ટેજની ફાવટ નથી. ચાલો ચંદ્રેશ કે પપ્પા કંઈક બે શબ્દ કહેજો. હવે ઘણા બધા બધું કશી કહી ગયા છે, મારે ખાલી સાંભળવાનું છે ને આનંદ વ્યક્ત કરવાનો છે. છતાં પણ કંઈક આવે એવું કહી દઉં છું. ચાલો ત્યારે હવે આ IIJM ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ શરૂ કરી. અમે તો નાનું કામ કરતા હતા પહેલાં જાણે, પછી એમાંથી અહીંયા પહોંચ્યું. હવે એને વર્લ્ડની વાત કરે છે. બહુ આનંદ છે આપણને. સાથે સાથે એક વસ્તુ સમજવાની છે કે અત્યારે બાળકોને ભણવા મોકલીએ છીએ આપણે 3 વર્ષની ઉંમરથી. જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી, ફલાણા કેજી કરીને છે. 20 વર્ષ થાય, સર્ટિફિકેટ હાથમાં આવે ત્યારે પણ એને કોઈ ગેરંટી નથી મળતી કે હું શું જાતે કમાઈ શકીશ, અથવા જોબ મળશે, અથવા તો ક્યાંક વૈતરું કરવું પડશે. કારણ કે આજકાલ M.Com થયેલા, ઇવન MBA થયેલા લોકો પટ્ટાવાળાની નોકરી પર તૈયાર થાય છે. ઘણા ન્યૂઝપેપરોમાં આવે છે. લોકોને તકલીફોનો પાર નથી, જોબની કોઈ ગેરંટી નથી, છતાં દિશાની સૂઝ નથી. માટે બાળકો આડેધડ આપણે ભણવા મોકલી દઈએ છીએ. સ્કૂલમાં જાઓ, ભણો અને જે થાય તે કરો, એવી રીતે. આગળ કશું નથી, બધા ભણે છે એટલે ભણે છે, પતી ગઈ વાત. ખરેખરમાં અહીંયા શું છે, 20 વર્ષ સુધી જે છોકરાઓ ભણીને કશું પામી નથી શકતા, એ અહીંયા 20 મહિના નહીં, 10 મહિના નહીં. હમણાં પેલા વ્યક્તિએ કીધું બેને કે 3 મહિનામાં મારી લાઈફ બદલી ગઈ, ફક્ત 3 મહિનામાં. અને 3 મહિનામાં જે લોકો અહીંયા શીખ્યા છે એ ગઈકાલના 2 દિવસની અંદર એ લોકોને કેટલો રિસ્પોન્સ મળ્યો. હજી સર્ટિફિકેટ હાથમાં આવ્યા નથી અને જોબ મળી ગઈ, ફ્રીલાન્સિંગ મળી ગયું. આનાથી વિશેષ જોઈએ શું તમારે? કોણ આપી શકે તેમ છે તમને? આ મારો સન છે અને વખાણ કરું છું એવું નથી, વાસ્તવિકતા છે તે કહી રહ્યો છું. આંકડાકીય વિગતો તો તમે ત્રણે આપણને સાહેબ હોય તથા શાંતિ કાકાએ બધી વાત સમજાવી દીધી આપણને, એટલે આંકડાકીય વાત નહીં પણ જનરલ વાત કરવા માગું છું. આજના યુવાનમાં જો કોઈ કમી હોય તો આત્મવિશ્વાસની કમી છે. એ વસ્તુ વિવેકાનંદે જે વખતે કીધી હતી એ વસ્તુ સાચી છે. કારણ શું છે કે ઘણા છોકરાઓ સ્યુસાઇડ કરે છે. કેમ? પેપર ખરાબ ગયું છે, પાસ થઈશ એની ગેરંટી નથી, અને પછી રિઝલ્ટ આવે છે કે એનું 65% છે, 70%, ઇવન 75-80% સુધીના રિઝલ્ટ જોયા છે. એનો મતલબ શું? એની પાસે કોઈ કોન્ફિડન્સ નથી. તો પહેલી જરૂર છે આજના યુવાનોમાં કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ કરવાની. અને હું એમ માનું છું કે આ સંસ્થા કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ કરવાનું કામ કરી રહી છે. દરેક વ્યક્તિ જે શીખવા આવે છે એને પોતાનો આત્મવિશ્વાસ જાગૃત થાય છે કે મને હું શીખીશ તો કંઈક મળશે, એને જે જોઈએ છે તે. કોઈ શોખથી કરે છે તો એનો શોખ પૂરો થાય છે. પૈસા કમાવો છે તો જોબ મળી શકે છે. કેમ કે એ લોકોને વિશ્વાસ છે, અને જેમ જેમ આગળ વધશે એમ આ વસ્તુનો ખ્યાલ બધાને આવશે. કેમ કે એમની આંતરિક શક્તિ બહાર લાવવાનું કામ થઈ રહ્યું છે આમાં, અને આંતરિક શક્તિની સાથેનો આત્મવિશ્વાસ દ્રઢ બને છે. અને હું તો એટલે સુધી કહી શકું છું કે તમે લોકો જ્યાં જોબ કરો, જ્યાં કંઈ પણ કરો, તો તમે શેઠ થઈને કામ કરો, સર્વન્ટ થઈને નહીં. કેવી રીતે? કે તમારું પોતાનું મને કામ કરો કે જેથી કરીને શેઠના તમે વાલ થઈ જાય કે એને એમ થાય. મોટે ભાગે જોબ કરનાર હોય છે, મોટી ગમે તે ડિગ્રીવાળા અંદર ખાને ગભરાતા હોય છે કે મને બોસ કાઢી મૂકશે તો શું, બીજે જોબ નહીં મળે તો શું. એટલે જોબ કર્યા પછી પણ સતત ભયમાં જીવે છે માણસ. તો એના કરતાં એવી રીતે તમે કામ કરો કે જેથી કરીને શેઠ યાદ કરે કે આ જતા રહેશે તો શું થશે મારે. એવું તમારું આત્મવિશ્વાસથી કામ કરે છે, અને અહીંયા આવું શીખશે તો એ પ્રમાણે કામ કરી બતાવશે. અને આત્મવિશ્વાસની સાથે જે વાત કરું, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સની વાતમાં આ વસ્તુ મને સમજણમાં આવી એટલે મેં પોતે એક કામ એવું કર્યું હતું કે મારા બંને પુત્રોમાં કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ કરવાનું કામ નાનપણથી કર્યું હતું. અને એ બિલ્ડ કરતાં કરતાં એવું બિલ્ડ થયું કે અત્યારે ચંદ્રેશ તો ઓવર કોન્ફિડન્સ ચાલી ગયો છે, અને અમારા કોન્ફિડન્સને ડિસ્ટર્બ કરી નાખી ઘણી વાર તો. પણ છતાં એનો ખૂબ આનંદ છે અમને. કેમ કે અમારું વિઝન ટૂંકું પડે છે એના વિઝન પાસે, તકલીફ અહીં પડે છે. દ્રષ્ટિ જ્યારે આપણી નાની, કારણ કે આપણે એ રીતે ડેવલપ થયા છે, એનું ડેવલપમેન્ટ એ રીતે છે. એટલા માટે આ બધી વસ્તુ છે, હોવા છતાં પણ અમને ખૂબ આનંદ છે. અને મારા કરતાં વિશેષતા બધા જે સ્ટુડન્ટ છે
એમના વાલીઓ છે એ બધા કહી રહ્યા છે. અને આમાં બીજી વિશેષતા શું છે કે કોઈ એજ્યુકેશનની જરૂર નથી. 5 ચોપડી હોય તો ભણે, ગ્રેજ્યુએટ હોય તો ભલે, લેડીઝ હોય ભલે, જેન્ટ્સ હોય ભલે, મોટી ઉંમર કોઈ પણ વ્યક્તિ ફટાફટ શીખી જાય છે અને એનું ઈચ્છિત અર્નિંગ કરી શકતા હોય છે. અંતમાં આપ સર્વેનો આભાર માની અને મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. જય સ્વામિનારાયણ સાથે જય હિન્દ. Following students to collect their certificates. Boski Rawal for manual and CAD designing. Nisha Suchak, manual and CAD designing. Good evening, everyone. My name is Divya, and I'm the student of IIGM since 1 year. And it's been wonderful to be with them, and they have created a great platform for us. And as the sir mentioned before, that there was a job fair before 2 days, and it was like wonderful. At that time, we were like, come to know about us that yeah, we are actually a manual designers, and they have given up they have changed our personality, because before that we were just a common like man or woman, that now they have become changed us that yeah, you are a manual designer. Thank you sir, thank you ma'am, thank you. Would like to request sir once again to please join us. Please. Yes sir. Jignasha Gadvi from manual designing. So जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल की ओर से सर और चंद्र सर को बुकेज. Now would like to invite Mr. Chandresh Bhai Soni to please join us on stage. Darshita Soni, manual and CAD designing. बहुत बहुत धन्यवाद करण जी और आकांक्षा. जाइए अब निकलिए यहाँ से, अब हम आ गए हैं. निकलिए निकलिए. जाते जाते एक और शायरी सुनाना चाहूंगा. सुना सकता हूँ? कहते हैं लोग कि ये जिंदगी में वक्त बहुत कम है. कहते हैं लोग कि ये जिंदगी में वक्त बहुत कम है. हम कहते हैं यारों जरा गौर से देखो, ये वक्त में जिंदगी बहुत कम है. थैंक यू. खाना खा के जाना. राज नाम तो सुना ही होगा. ए दृष्टि मेरी दोस्त, कहाँ हो तुम? ये रही मैं मेरे दोस्त. Good evening everyone. My name is Drashti Chaje. I am student of IIGM doing CAD designing, manual designing. मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे फोटोशूट का बहुत शौक है. मेरा फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन है, मेरी फेवरेट हीरोइन श्रद्धा कपूर है. मैं फिलहाल फ्रीलांसिंग का सोच रही हूँ. मेरी वेबसाइट का नाम theheartofdc.com. वैसे मिलेगी नहीं, फिर भी लिख लो, अंडर कंस्ट्रक्शन है. वैसे दृष्टि सिर्फ नाम की जरूरत थी. यार दृष्टि, इनको देखकर नहीं लगता ये लोग बोर हो चुके हैं.
Am I right? So let's play a game. Are you ready? Please cooperate with us, please. Yes, yes. Okay. Please, any two come on stage कौन आना चाहेगा? from this row and from right one. दया दया को तो रितु अग्रवाल okay. So game is Hindi comfortable. Hindi. Okay. So game is like आपको from this row right and this one is left. Okay. For you left one and right one. There. Okay. You have to convince people for watch. Watch आपको लानी है कोई भी 5 जन से. आप लोग यहाँ से 5 जन से कोई भी 5. You have to convince people. और आप लोग को कन्विंस नहीं होना है, मतलब हो जाना है कन्विंस थोड़ी देर के बाद. ओके. जो कोई पहले लेके आएगा इज द विनर ऑफ दिस गेम. मिलेगा वो चंद्रेश्वर बता देंगे. ओके. सो टाइम स्टार्ट नाउ. 3, 2, 1 गो. इसका प्रियांक मर जाऊंगा यार मैं. हेलो You have only 2 minutes. Okay? चिंता मत करियो, वापिस आपको वॉचेस मिल जाएगी सबको. ओके. महंगी वाली लेके आई हो सब. कुछ नहीं हुआ है. नहीं आ जाइए. And the winner is Daya Anshodarya. Big round of applause for Miss प्लीज Daya. दया तालियां हो जाए दया जी के लिए. इस रंगीन शाम को और रंगीन बनाते हुए मैं अब उसे बुलाना चाहूंगा जो मेरा दोस्त है और मेरा दुश्मन मोहित मंडोरा. एंड टीम. नमस्कार, मैं चमन बाटली वाला आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करना चाहता हूँ. आज का हमारा कार्यक्रम दूध का दूध पानी का पानी में 420 प्राइवेट लिमिटेड पार्टी से जीवराज खंबा जी का स्वागत करता हूँ. नमस्कार 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 सभी को मेरा नमस्कार. जो अपनी गाड़ी में आए उसे भी मेरा नमस्कार. जो दूसरों की गाड़ी में ठुस ठुस के आए उसे भी मेरा नमस्कार. मैं जीवराज खंबा 420 प्राइवेट लिमिटेड का उम्मीदवार हूँ. यो हमारी असाइनमेंट है. नहीं तो मैं हो जाता हूँ. चल तूने कौन सा पढ़ के उखाड़ लिया. घूम तो मेरे साथ ही रही है. इधर यो हमारा सेक्रेटरी गार्ड. सेक्रेटरी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड. नहीं तो मैं हो जाता हूँ. आजा तू ही बोल ले. सब बोल ले होशियार. आइए नेताजी, आपका स्थान ग्रहण कीजिए. हरिओम. नेताजी, अब हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे. ये इंटरव्यू क्या हुआ है. ओहो साथ साथ क्या. पूछो पूछो. कि आपका जन्म कहाँ हुआ था. हमारा भारत में हुआ था हमारा जन्म.
कहने का मतलब था भारत के किस इलाके में हुआ था? इतना बेवकूफों वाली बात, इलाके में तो कुत्ते पैदा होते हैं, इज्जतदार आदमी है, घर पैदा हुए थे हम। नेताजी जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबी क्या क्या है? ए हॉबी बताओ। सुन लिया। नेताजी अब हम आपके साथ कुछ जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज का होगा? सामान्य ज्ञान नेताजी। ओहो पूछो पूछो। नेताजी पहला कदम किसने रखा था? किधर? अच्छा अम्मा स्टोव ने रखा था भाई। अम्मा स्टोव? नेता मैं हूँ या तू? चल पीछे। नेताजी तो दूसरा कदम किसने रखा था? सटिया गए क्या खंबे जी? एक टांग से वो लंगड़ी खेलने गया था क्या? दूसरी टांग भी उसी ने रखी थी। मैं पप्पू का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे फैन में हूँ, मुंह आप छुपा रहे हो। अरे उनकी जैसा और कोई दूसरा ही नहीं। आजकल तो यादव साहब भी बोलते हैं, जब से वो इंडस्ट्री में आए हम पे तो जोक्स बनना ही बंद हो गए। करते हैं ये डेमोक्रेसी का हुआ है। ओहो प्रजातंत्र तो सुनो, जनता के द्वारा जनता की ऐसी कैसी, इसी को तो कहता हूँ डेमोक्रेसी। एक बार और बजा लो, चलो बजा लो एक बार और। बहुत बढ़िया। हमारी जनता जानना चाहती है कि आपने क्या क्या किया? क्या क्या भाई? घोटाला नेताजी, घोटाला। कुछ नहीं आता इनको, कुछ नहीं। वो कंबल उड़वाए थे पिछले साल। अरे वही जानवरों को, गाय भैंसों को। नेताजी मतदान को जनता से लिया और कंबल जानवर को उड़वाए? नहीं उड़वाते तो सर्दी में मर जाते। आखिर दूध तो उन्हीं का पीते हैं। बड़े फेमस हो रहे हो तुम। बस बस। आप अपनी पार्टी का कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारी जनता को? हाँ तो सुनो, भारी बहुमत से हमें विजय बनाओ, भारी बहुमत से हमें विजय बनाओ। जो ना माने दारू से उसे कॉफी पिलाओ। बहुत बढ़िया। नेताजी जैसे आपने बताया कि आपको नाच गाने का बड़ा शौक है, कुछ करके दिखाइए। ये छोटी मोटी चीजें हम नहीं करते, तू करके बता दे चल। आजा 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 आजा, इज्जत पूरी खराब कर ली तूने, नंगा कर दिया पूरा। आजा खड़ा हो जा। जी आप अपने परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? जी हमारे 13 बच्चे हैं और औरत एक है। अरे इसको हिम्मत बता रही, मारो इसको, ज्यादा हिम्मत आई तेरी तो। बस 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 गिर जाएगा। थैंक यू। सबने देखा और सुना तो प्लीज
सोचिए और समझिए, फिर मत कीजिए। थैंक यू। Moving further with our convocation ceremony, I would like to call the girl with the mind, woman with attitude, and the lady with class, Miss Darshana Mandalia, the Managing Director of Jewelcast and Techno Private Limited. Isha Patel, CAD and Manual. Kiran Cocaine CAD Designing. एक बात बता, मैं तुम्हें टास्क दूं, कर पाएगी? राज, ऐसा कोई टास्क नहीं जो मैं ना कर सकूं। वैसे तेरे बताए हुए मैंने बहुत टास्क किए, तो क्यों ना इसमें हम हमारे स्टूडेंट्स और गेस्ट को भी इन्वॉल्व करें? Sure, why not? So let's go. Okay. Ask for you. Any two jokes. Dialogue of Amitabh Bachchan. What no? अरे सब सीरियस क्यों हो रहे हो? Any two, मैम. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। क्या नाम है आपका? किरण। किरण। किरण जी, थैंक यू। नेक्स्ट Yes, sing a song. Very bad idea. I can't sing. दहलीज पे मेरे दिल पे जो रखे है तूने कदम, मेरे नाम पे मेरे दिल की I don't know how to sing further. हाँ, सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना. Thank you. Actually, I heard that you are disc jockey. Okay, and also coaching for dance class. Okay, तो डांस तो बनता है। Okay, I'm joined. Come on, please, 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 please. Come on. Sawan. Sawan, please, please. Come on.
Now, moving for the convocation ceremony, I would like to call Harshad Bhai Zinduwadia. Now Mr. Chandresh Soni will honor our chief guest, Dr. Harshad Bhai Zinduwadia. Like to call upon Vishal Prajapati, CAD Designing. ऑडियंस प्लीज, तालियों की आवाज कम आ रही है. Hiren Prajapati, CAD Designing. Sanjeev Majumdar, CAD Designing. बाप रे, बहुत सर्टिफिकेट हो गए. सर आपको नहीं लगता मुझे भी कुछ मिलना चाहिए? अच्छा, कुछ मतलब छोटा बोटा तो मिलना ही चाहिए, आपको नहीं लगता? यस, ओके. सर्टिफिकेट के लिए पहले एग्जाम देनी पड़ती है. अच्छा, ये तो सिर्फ एक ही चीज मिलेगी. क्या? बाबा जी का देख लूंगा सबको. Now we would like to call upon Dhruvil Soni to give a dance performance. राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो. अरे राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो. अरे चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो. चांद दाल सब आपने कर दिया. सही है. So now proceeding towards our convocation ceremony, we would like to call upon again Mr. Chandresh sir. Ranpura CAD Design and Diamond Grading. और अब वो है जो छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था. कौन? समीर. समीर. So let's call upon Sameer Sayyed, Manual Designing.
we would like to call upon Karan to present tribute to Jitu ji. So big round of applause for Karan. लॉन्ड्री बॉय। अरे ये क्या है? जीतू जी शूटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। आइला, क्यों नए कपड़े मैं पहन के देखूं? मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। क्यों ना अब जीतू जी के गानों पे मेरा अंदाज हो जाए। Thank you, Karan. So now let's call upon Miss Darshna ma'am on the stage and would request him to honor our students. It was a wonderful evening. Lastly, I would like to call upon the President of Jewelcast and Techno Private Limited, the man with vision and mission, Mr. Chandresh Soni, and Ms. Darshna Mandalia on stage to conclude the event. Good evening all friends, students and all invited friends. We have tried to make this event a success, and as for us, actually this is the successful event. કોંગ્રેચ્યુલેશન દરેક અમારા સ્ટુડન્ટ્સને જેને સર્ટિફિકેટ મળ્યા છે અને આગળના બ્રાઇટ કેરિયર માટે ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ મેની મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. હમણાં જે તમારા માટે એનાઉન્સ કર્યું કે ધ ગર્લ બિહાઇન્ડ ધ વિઝન એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ, સો એકચ્યુઅલી ધ કન્સેપ્ટ દેટ વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ફર્સ્ટ ટાઈમ ફોર ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે આપણે 2 દિવસનો જે જોબ ફેર રાખ્યો 2nd and 3rd of March, right? So that was an best idea that we have just got from Darshna કે આપણે આ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ ધારો કે સ્ટુડન્ટ્સ એક્સક્લુઝિવલી આ રીતે સ્કિલ સાથે આપણી સાથે તૈયાર થયા છે. સો વાય શુડ દે ગો ફોર ધ જોબ ડોર ટુ ડોર ઓર જ્વેલર્સ ટુ જ્વેલર્સ? લેટ ધ જ્વેલર્સ કમ ટુ અસ, લેટ ધેમ ગેટ ધ ચોઇસ and let the student also get the choice there where they want to go with which are the terms and all these things. અમે પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એક પ્લેટફોર્મ જે પૂરું પાડ્યું હતું કે જ્વેલર્સ કે મેન્યુફેક્ચરર્સ જે આવે એમને પર્સનલી ઇન્ટરવ્યૂ લઈ શકે અને પોતાની જ ઓફિસ કે શોપની અંદર
પોતાના એન્વાયરમેન્ટમાં ફ્રીડમ સાથે ઇન્ટરવ્યૂ લેતા હોય એવી રીતે ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન અમારું કોઈ જ ઇન્ટરફિયરન્સ નહોતું રહેતું. સ્ટુડન્ટ એન્ડ ધ જ્વેલર્સ ફક્ત એ લોકોનું જ ઇન્ટરેક્શન થતું હતું અને એ લોકો જ એમની રીતે ડિસ્કશન કરતા હતા. ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે એક પ્રયોગ કર્યો છે, અમારી રીતે ઘણી સફળતા મળી છે. અમે આ બધાનો સહકાર હશે ઇન્ડસ્ટ્રીનો, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતથી જે સીડીના સાહેબ આવ્યા છે એમને પણ અમે આગળ જાણકારી આપતા રહીશું. નિઝવાન સાહેબનો પણ જે સપોર્ટ છે એમણે ઇન્વાઇટ કર્યા છે ત્યાં આગળ દિલ્હી આવવા માટે. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ વી હોપ કે આગળના લેવલે સારું આઉટપુટ હજી પણ વધારે સારું આપી શકીશું. જે કોઈ પ્રોગ્રામ આપણે ડિઝાઇન કર્યો એમાં જે ટીમ મેમ્બર્સ છે અમારા, ફ્લોર મેનેજમેન્ટથી માંડીને પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ ડિસ્પ્લે એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ, તો એમાં અમે કોઈ હાયર કરેલા કેન્ડિડેટ્સ કે એવું નથી. ધીસ ઇઝ ઓલ IIGM ટીમ. તો એકવાર હું રિક્વેસ્ટ કરીશ, દરેક ઇવેન્ટને સફળ બનાવવા માટે મારા દરેક ફ્લોર મેનેજમેન્ટ જે લોકોએ લીધેલું હતું હાથમાં કે પરફોર્મન્સ આપ્યું છે, બધા જ મારા સ્ટુડન્ટ્સને પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ વન્સ પ્લીઝ. બેકસ્ટેજ, ફ્લોર મેનેજમેન્ટ, ઓલ ધીસ થિંગ્સ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. આ દરેક અમારા IIGMના સ્ટુડન્ટ જ છે, મલ્ટી સ્કિલ પીપલ, દે આર મલ્ટી સ્કિલ. સ્ક્રિપ્ટિંગથી માંડીને ડિઝાઇન બધું જ સ્ટુડન્ટે સાથે મળીને કરેલું છે. સો anyone planning for any events, so they can contact these people and they will make your event successful, right? Thank you all of you, thank you so much. Scripting થી માંડીને દરેક વસ્તુ, as I told you, designing બધું સ્ટુડન્ટ્સ દ્વારા થયેલું હતું સેન્ટરમાં, right? So thank you again, thank you, all the best. And again આપણી મોટી ઇવેન્ટ સારી વજી કરીશું ત્યારે આપણે આ જ ટીમ સાથે કામ કરશું, રાઈટ? ઓલ ધ બેસ્ટ, થેન્ક યુ. ફાઇનલી એક સ્પેશિયલ અનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું હતું. IIGM is now going to open one center in Rajkot as well one center in Baroda as in franchisee module. So I just like to invite Mr. Bharatbhai Parmar, come on the stage please, and Raj Shekhar, please come on the stage. So within we are expecting after the government process and all these things, expecting within 3 to 4 months the Rajkot and Baroda center we are just starting with the IIGM same brand, right? And I would like to invite Prasad sir and Santi Kaka for a bouquet please. And I just would like to invite Papa Dr. Harshad Bhai Jinjuwadia, Nizwan sir for a group photo please.
पल पल बाजेगा